یہ کوئی چھوٹی موٹی ہراسمنٹ نہیں ہے. اگر ہراسمنٹ کی ہسٹری لکھنا شروع کرو تو ٹاپ 10 میں آ سکتی ہے. ویڈیوز دیکھیں تو اس میں اس کی بھی اتر رہی ہے. پست ترین درجہ جو ہے حیوانیت کا, اس میں بھی اتنی بدترین مثال نہیں ملتی ہوگی جو یہ مثال قائم ہوئی ہے. اگر تھوڑا سا اندھیرا ہوتا تو کوئی نہ کوئی ان میں زیادتی کر کے بھی چلا جاتا. لیکن یہاں پر کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں کی گئی. ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ زیادتی نہیں کی گئی؟ میڈیکل رپورٹ بتاتی ہے. اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں. السلام علیکم. اردو پوائنٹ سے میں ہوں آپ کی میزبان تہمینہ شیخ. ناظرین, عائشہ اکرم کا جو واقعہ پیش آیا 14 اگست کو, جو ویڈیو وائرل ہوتی ہے, اس ویڈیو کی وجہ سے پوری قوم کا سر جو ہے وہ جھک گیا چند لوگوں کی وجہ سے. وجہ کیا تھی, پرابلم کہاں تھی, اس حد تک یہ معاملہ کیوں آ گیا کہ بدنامی کا باعث بنا, اس حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ اس ٹائم موجود ہیں سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, موٹیویشنل سپیکر ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ایسوسیٹ پروفیسر ہیں CMH ہاسپٹل میں, ڈاکٹر سحر چاولہ سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام تہمینہ. سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ جی, آپ نے ٹائم دیا ہے. گفتگو کے سلسلے کا پراپر آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے مجھے اپنے ویوز دیں, کیا کہیں گی, کیا ہو رہا ہے؟ میرے خیال سے بربریت کا دور ہے, وحشت کا دور ہے, خوف کا دور ہے اور پریشانی کا دور ہے. یہ نفسا نفسی ہے, یہ سب قیامت کی نشانیاں ہیں جو کہ بہت زیادہ عیاں ہونا شروع ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے, میں کوشش کرتی ہوں کہ میں سوشل ایشوز پہ اپنی گہری نظر رکھوں اور لوگوں کی کردار کشی کرنے پہ اپنی گہری نظر نہ رکھوں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. نہ ہمیں حق ہے, نہ ہی ہم میں سے کوئی ایک الٹیمیٹ اور ایک پرفیکٹ اور ایک ایبسولوٹ مجسمہ ہے جس کو آئیڈیلائز کر کے اس کو پوجا جا سکے اور اس کو کہا جا سکے میرے سمیت کہ تم بتاؤ کہ اس انسان نے اس معاملے پر اتنے عرصے تک خاموشی کیوں برتی ہے. مجھے نہیں پتا میں کسی کے کردار کی, کسی کی سوچ کی, کسی کے مزاج کی, اور اس وقت وہ جس چیز سے گزر رہا تھا اس کی عکاسی نہیں کر سکتی. میرا پوائنٹ آف انٹرسٹ یہ بھی نہیں ہے کہ اگر کسی کے ساتھ یہ ہوا تو اس نے ان 3 دنوں کے عرصے میں کیسا محسوس کیا. میرا پوائنٹ آف انٹرسٹ اور ہمارا پوائنٹ آف انٹرسٹ بحیثیت قوم یہ ہونا چاہیے کہ یہ جو ہوا ہے یہ کیا ہوا ہے, کیا یہ ہونا چاہیے, کیا یہ ایک اسلامی معاشرے کی عکاسی کرتا ہے, اسلامی کیا یہ ایک انسانی معاشرے کی عکاسی کرتا ہے, کیا یہ کہیں سے اخلاقیات کے درجے پست ترین درجہ جو ہے حیوانیت کا, ٹھیک ہے, اس میں بھی اتنی بدترین مثال نہیں ملتی ہوگی جو یہ مثال قائم ہوئی ہے. اس پر چاہے خاموشی 3 دن بعد توڑی جاتی, 3 سال بعد توڑی جاتی, 30 سال بعد توڑی جاتی, میرا رد عمل اتنا ہی سنگین ہوتا جتنا اس وقت سنگین ہے. اور سحر, آپ بھی ایک لڑکی ہیں, میں بھی ایک لڑکی ہوں. اس معاشرے میں بہت ساری لڑکیاں ہیں, خواتین ہیں جو گھر سے باہر نکلتی ہیں, جیسے کہ آپ بھی جاب کرتی ہیں, میں بھی جاب کرتی ہوں, بٹ اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ گھر سے نکلیں اور اس قسم کے واقعات آپ کے ساتھ پیش آ جائیں اور ہم ان کی تردید کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن ریزن ہوتی ہے, ہر کام کے پیچھے ایک ریزن ہوتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہو کہ کیا ریزن ہے, کیوں ایسا ہو گیا؟ دیکھیں میری بات سنیں, مجھے تو یہ بھی سمجھ نہیں آتی کہ وہ جس 14 سال کی بچی کو قبر سے نکال کے اس کا کیا تھا, اس کے پیچھے کیا ریزن ہو گئی. آیا اس نے کفن ٹھیک سے نہیں پہنا ہوا تھا. 10 سال کی ابھی اکاڑا میں ایک مینٹلی ڈسیبلڈ لڑکی ہے جس کا اس کی ماں کے سامنے ہوا ہے. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ اندھی تھی تو کیا اس سے کپڑے ٹھیک طرح نہیں پہنے گئے. ایک 22 سال کی لڑکی کا ابھی یہ اگست میں ہی, پتہ نہیں 22 اگست کو کہ کس دن, اب مجھے نہیں پتا ڈیٹ میں صحیح کوٹ کریں, اپنے شوہر کے سامنے ہو گیا, تو کیا ریزن ہو گیا. ٹھیک ہے, ریزن اس کی یہی ہے کہ جو غلاظت ہے, جو گندگی ہے, جو اخلاقی پستی ہے, وہ ذہنوں میں ہے, وہ تربیتوں میں ہے, وہ کرداروں میں ہے. اور جہاں پر ولنریبل موقع ملتا ہے, جہاں پر شکار ملتا ہے, جہاں پر موقع ہوتا ہے کہ کمپیریٹیولی اس کو ایکسیس کیا جاتا ہے, تو یہ سب گدوں کی طرح اس کو چپکتے ہیں. شکار ملنے سے کیا مراد ہے؟ شکار ملا ہے, شکار پرووائڈ کیا گیا ہے, شکار اناؤنسمنٹ کر کے آیا ہے, کیا کر کے آیا؟ دیکھیں میری بات سنیں, یہ کسی کی نادانی, کسی کی شوخی یا کسی کی لیس پریپیئرڈنس کا بھی نتیجہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, میں سب کو یہی کہوں گی کہ اتنا ججمنٹل ہونے کی کسی بھی بات پہ ضرورت نہیں ہے. اور اگر آپ کسی کی کسی خامی کو لے کے ججمنٹل ہو رہے ہیں تو آپ بھی کوئی ساری کی ساری صفائیوں کا مجسمہ نہیں ہے. آپ کی بھی کسی نہ کسی خامی کو لے کے کوئی ججمنٹل ہو سکتا ہے. اور میں کیسے یہ بتا سکتی ہوں کہ کیا اس کو اناؤنس کیا گیا ہے, کیا اس کو بتایا گیا ہے, یا کیا کچھ کیا گیا ہے, کیونکہ میں وہ انسان نہیں ہوں, نہ میں اس انسان سے منسلک ہوں. میرا پوائنٹ آف انٹرسٹ صرف یہ ہے کہ جو چیز سامنے آئی ہے, جو چیز روبرو آئی ہے, وہ نہیں ہونی چاہیے تھی, اور یہی میرا سٹانس ہے. اور یہی میرا کے قریب کیمراز نصب کیے گئے ہیں گریٹر اقبال پارک میں, جس میں سے فعال جو تھے وہ 30 تھے اور اس سے زیادہ جو تھے وہ غیر فعال تھے. کس کا فیلئر سمجھتی ہیں؟ دیکھیں کا تھا, کس کا تھا؟ ایبسولوٹلی گورنمنٹ سیکیورٹیز کا یہ فیلئر تھا. اور یہاں پر میں یہ بھی پیغام دینا چاہوں گی ان سارے سیلیبریٹیز کو, چاہے وہ سوشل میڈیا سیلیبریٹیز ہیں, چاہے وہ نیشنل میڈیا سیلیبریٹیز ہیں, کہ جب میٹ اینڈ گریٹ ارینج کریں تو یہ میٹ اینڈ گریٹ ایک کیجول چیز
चीज नहीं है. देखिए अगर किसी माशरे में, मैंने पहले भी एक मीडिया हाउस पे बात की, करप्शन रेट कम से कम या 0.01% भी है तो मजमे में एक बंदा तो गंदा है. अगर मजमे में एक बंदा भी गंदा है तो आपकी इज्जत और आपकी इस्मत खतरे में है. आप प्रिकॉशन और प्रोटोकॉल लें. पॉइंट इज दिस कि आपको प्रिकॉशन लेने चाहिए, आपको बताना चाहिए, आप अरेंजमेंट करके वहां पर जाएं. लेकिन अगर आप अरेंजमेंट करके नहीं जाते हैं और इस किस्म का माहौल क्रिएट हो जाता है और फिर स्टेट बीच में आती है, फिर पुलिस बीच में आती है, पुलिस डॉल्फिन आपको बचाती है, तो फिर आप ये नहीं कह सकते हैं कि माशरा खराब है. देखिए मेरी बात सुने, अगर 400 लोग उस पर गिद्ध की तरह झपटे हैं और उनमें से एक भी सामने नहीं आया तो मैं ये नहीं कहूंगी कि माशरा खराब नहीं है. सामने आया है, बहुत से लोगों को अरेस्ट किया है, कुछ की पहचान भी हो गई है. आई एम ग्लैड अगर ये सब हो रहा है तो, लेकिन ये उस वक्त एक्टिवली भी होना चाहिए था. जो उस वक्त वहां पे 400 लोग मौजूद थे उसमें से भी किसी ना किसी को उठ के सामने आना चाहिए था. जाहिर है अगर हमारा मुल्क फंक्शनल है तो पूरे का पूरा मुल्क खराब नहीं है. ये बात एक हकीकत है, ये बात सच है. देखिए कोई भी माशरा तब कायम रहता है जब अच्छे लोग बुरे लोगों से ज्यादा होते हैं. ये बात एक हकीकत है, लेकिन बदकिस्मती से उस वक्त ये चीज और ये परसेंटेज रूनुमा नहीं हो सके और इसी वजह से हमारा सर शर्म से झुक गया. बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं, सोशल मीडिया पर खबरें गर्दिश कर रही हैं कि जाने से पहले आयशा ने अनाउंसमेंट की थी कि मेरे तमाम मद्दाह, मेरे तमाम फैंस जो हैं वो वहां आ सकते हैं, मुझे मिल सकते हैं. फिर वहां पर वो गए. ये सब मेरी और आपकी बातें नहीं, हम सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, हम खबरों की बात करें. वहां पर वो लोग आए, उन्होंने सेल्फीज ली, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे कि सेल्फी से बात छेड़ाछाड़ी और छेड़ाछाड़ी से आगे धक्कम पेल तक गई और फिर उसके बाद आपके सामने. यही तो इखलाकी पस्ती है कि अगर कंसेंट सेल्फीज का था तो उसका मतलब था कि बात सिर्फ सेल्फीज तक रहती. अव्वल तो जैसे कि हम बात करें कि मीट एंड ग्रीट पे बड़ा सोच समझ के और होशियार होकर जाना चाहिए. मेरे ख्याल से एक इबरतनाक मिसाल है जो कि ता क़यामत अब सब लड़कियों को, सब सेलिब्रिटीज को याद रहेगी कि वो इस तरह की हिफाजती इक़दाम करके जाएं. ठीक है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि जहां पर कोई खुला आपको शिकार मिले वहां पर कुछ करें. अगर आपने वीडियो देखी है, रिसेंटली एक वायरल हुई है कि रक्शे में बुरखे वाली लड़कियां बैठी हैं, उसकी गोद में मर्द गिर रहे हैं. एक बुरखे वाली लड़की, ये 14 अगस्त से अभी वीडियो वायरल हुई है, बाइक पे बैठी है, एक मर्द उसके पीछे चढ़ गया और चढ़ के, अल्लाह माफी दे मैं कहना नहीं चाह रही, अपने आप को उससे जितना रब कर सकता है वो उससे रब कर रहा है. उसने तो बुरखा पहना हुआ था, वो तो घर से नहीं बता के आई थी कि मैं इस वक्त यहाँ पर पहुंच रही हूँ. ठीक है. हम इस बात को जस्टिफाई नहीं कर सकते कि अगर ये होगा तो ये होगा. सर आपको अपने घर का एड्रेस पता है? एब्सोल्युटली याद है? एब्सोल्युटली. घर से बाहर जो लोग जाते हैं उन सभी को पता होता है कि मेरा ये घर है. आप FIR कटाते हैं तो FIR पे एड्रेस गलत क्यों लिखवाते हैं? देखिए मैं तो इस बात पे इससे कमेंट नहीं करूंगी कि हो सकता है उसको कोई सदमे की हालत में हो. ठीक है, हो सकता है. ठीक है, हो सकता है. आपके ज़हन में 100 सोचें चल सकती हैं. ये कोई छोटी मोटी हैरासमेंट नहीं है. ये वो हैरासमेंट है जिसका जो मिसाल है वो आपके पास, अगर हैरासमेंट की हिस्ट्री लिखना शुरू करो तो टॉप 10 में आ सकती है कि ऐसा भी कोई वाकया हुआ था. ठीक है, ये उस तरह की हैरासमेंट है जिसमें ब्लैक डे मनाया जा सकता है. आप क्या समझती हैं साहर के इस किस्म के वाकयात का होना? एक वो वाकया जो सोशल मीडिया पर खबरें गर्दिश की हम बात कर रहे हैं, उसके बाद एक और वाकया जो रिक्शे में होता है. अगर इन वाकयात को प्रॉपर तरीके से चेक एंड बैलेंस और सही तरह से कवर ना किया गया तो माशरा किस तरफ जा रहा है? जी तहमीना, ये बेहतरीन सवाल है हमारे पास. चेक एंड बैलेंस का आज मैंने एक और चैनल पे भी यही बात की है कि सबसे बेहतरीन रास्ता यही है, इबरत का निशान बना दिया जाए. शरई जो पनिशमेंट है, एक बार लटका दो चुराए में सबको और कर दो सबको वो सजा जो वो डिजर्व करते हैं. जो लोग घर में कुत्ते पालते हैं ना, और जो पालतू कुत्ते होते हैं, जो मेल कुत्ते होते हैं, जब वो सेक्सुअली फ्रस्ट्रेट होते हैं तो उनकी कैस्ट्रेशन करा दी जाती है. इन भी जानवरों की पकड़ के वही सजा होनी चाहिए. मैं पहले भी आपके चैनल पे मोटरवे वाले इंसिडेंट पे बोल चुकी हूँ कि पकड़ के इनकी कैस्ट्रेशन हो जानी चाहिए. लेकिन यहाँ पर किसी किस्म की कोई ज्यादती नहीं की गई. देखिए मेरी बात सुने, हम ये कैसे कह सकते हैं कि ज्यादती नहीं की गई? मेडिकल रिपोर्ट बताती है. मेरी बात सुने, जो हैरासमेंट हुई है वो ज्यादती है. हैरासमेंट और ज्यादती में बड़ा फर्क है. ये सारे पोटेंशियल हैं. अगर इनका बस चलता तो इसके बाद वो सियासती भी कर देते. और अगर आप वीडियोस देखें तो उसमें उसकी कर रही है. वीडियोस मैंने खुद देखी हैं जिस वीडियो के बैकग्राउंड में मर्द कह रहे हैं उतर रही है, उतरने दो, इसको पानी में फेंको. ये वही मर्द हैं जिनको अगर थोड़ा सा अंधेरा होता तो कोई ना कोई उनमें ज्यादती करके भी चला जाता. हम कैसे कह सकते हैं ज्यादती नहीं? मैं तो ये लफ्ज नहीं कह सकती ज्यादती नहीं हुई. कहता है ना, ये मैं नहीं कह सकती हूं. ये रिपोर्ट साबित करेंगी कि ज्यादती हुई या नहीं हुई. आप टेक्निकल टर्म्स में बात कर रही हैं, आप बात कर रही हैं कि हुआ है या नहीं. ठीक है, मैं बात कर रही हूं कि जुल्म कितना बड़ा हुआ है और जुल्म हुआ है. ये सारे हैरास हुई है, ये सारे पोटेंशियल हैं. ये सब वो लोग हैं जिनको जब मौका मिलेगा ये औरतों को करेंगे तो इन सब की सजा भी वही होनी चाहिए जिस क्राइम का इनके अंदर पोटेंशियल है. 14 अगस्त की वीडियो आपने देखी, पूरी कौम ने देखी. आप क्या समझती हैं कि वहां पर जो लोग मौजूद थे उनको वहां बुलाया गया था? एक तरफ कुछ लोग ये कहते हैं ये प्री प्लान्ड वाकया था,
नंबर 3, कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं मौके पे सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई थी तो ऐसा हो गया, ये तो बातें हो गई 3, लेकिन एट द एंड हुआ क्या आयशा के साथ? आयशा के साथ बहुत जुल्म हुआ है, और कोई भी लड़की होती, मैं अपने आप को उस जगह पे रखूं या आप अपने आप को उस जगह पे रखें, ठीक है, तो हम क्या ये सोच सकते हैं कि हम किसी को कहेंगे कि आओ और मेरे कपड़े फाड़ो? हम नहीं कह सकते किसी को भी, कोई भी औरत नहीं कह सकती, चाहे वो किसी भी कमाश और किसी भी प्रोफेशन से बिलोंग करती है। आयशा के साथ जो हुआ है वो बहुत बड़ा जुल्म हुआ है, और उसको इंसाफ मिलना चाहिए, और इस कौम की हर बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए जो इस वक्त अपने आप को पोटेंशियल थ्रेट में महसूस कर रही है। मैं कर रही हूँ। आप हॉस्पिटल में होती हैं, मैं मेडिकल कॉलेज में होती हूँ, हाँ जी, प्रोफेसर हैं आप, और सर्व कर रही हैं, ज़बरदस्त तरीके से सर्व कर रही हैं जी। लेकिन आयशा भी एक नर्स थी, आयशा भी एक हॉस्पिटल में थी, और हॉस्पिटल में होने का मकसद होता है अपने पेशेंट्स को अपनी ड्यूटी को सर्व करना है अच्छे अंदाज में। लेकिन बदकिस्मती के साथ आयशा एमरजेंसी में भी मुख्तलिफ टिकटॉक्स बनाती थी, जिस पर 2 मरतबा नोटिफिकेशन भी जारी हुआ कि ऐसा नहीं करना, लेकिन ये सिलसिला जारी रहा। इस पर क्या राय आप? देखिए तहमीना, ये बड़ा आपका ये भी बड़ा लॉजिकल सवाल है। हर ऑफिस के, हर जॉब के अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं। कुछ जॉब्स होती हैं वो सीरियस जॉब होती हैं। हम जिस प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, हेल्थ प्रोफेशन से, ये एक सीरियस जॉब है और मेरे ख्याल से इसके प्रोटोकॉल स्ट्रिक्ट होते हैं, और जब हम उस जॉब में एंटर हो जाते हैं तो उन घंटों में हमें उन प्रोटोकॉल्स के आगे सरनगू होना चाहता है और होना चाहिए। तो ज़ाहिर है इसका जवाब मेरे पास बहुत क्लियर है कि प्रोटोकॉल तोड़ने की तो आप बिल्कुल भी मैं इसको कैसे जस्टिफाई, कोई भी नहीं कर सकता, ठीक है, ये गलत है, नहीं होना चाहिए था। देखिए ऑफ कोर्स आप कैसे वीडियोस बना सकते हैं, और वो भी इमरजेंसी में, वो भी हॉस्पिटल। ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। क्या मैसेज आपके पास साहर, क्या कहना चाहती हैं खवातीन से, उन खवातीन से जो अब भी क्रिटिसाइज कर रही हैं, खसूसी तौर पे पहले उनसे कि नहीं किसको नहीं जाना चाहिए था, आयशा को नहीं जाना चाहिए था, आयशा ने गलत किया है, आयशा जाने से पहले अनाउंसमेंट करके गई थी, इस किस्म के लोगों का जो तबका है उनको क्या कहना चाहिए? हाँ, थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए मैं ये कहूँगी उन सब लोगों को कि ठीक है, हम सब अपनी लाइफ में जो है वो बेवकूफ़ियाँ करते हैं, हम अपनी लाइफ में नादानियाँ करते हैं, और हम अपनी लाइफ में शोखियाँ करते हैं। कुछ शोखियाँ, कुछ बेवकूफ़ियाँ और कुछ नादानियाँ जो हैं वो हमें महंगी पड़ सकती हैं। हो सकता है इस बात के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उस बच्ची, उस लड़की आयशा के साथ भी यही हुआ हो कि उसको अपनी नादानी जो है बहुत ज़्यादा महंगी पड़ गई हो, लेकिन ये इस बात को जस्टिफाई नहीं करता कि उसके साथ ये होना चाहिए था। कोई भी बेवकूफ़ी, कोई भी शोखी और कोई भी नादानी इस इंटेंस मैग्नीट्यूड की नहीं हो सकती कि हम इस बर्बरियत को जस्टिफाई कर सकें। खुदा के लिए आप मजलूम से पहले जो जुल्म करने वाला है उसको कंडेम करें। हमारे माशरे में चेंज तब आएगी जब हम विक्टिम ब्लेमिंग छोड़ देंगे, और जब हम ये कहना छोड़ देंगे तुम क्यों गई थी, तुम क्यों ना करती, और हम ये कहेंगे कि तुम्हारी मजाल कैसे हुई और तुमने ये कैसे किया, तब इस माशरे में चेंज आएगा। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि इस किस्म का वाक़या पेश आता है, फिर कुछ हमारे सहाफ़ी भाइयों के साथ गुफ्तगू शनीद भी होती है, प्रोग्राम्स भी होते हैं, फिर उसके बाद बाकी लोगों से बात करने का इनकार, ऐसा क्या हो सकता है? अगेन ये जो इस वक्त हमारे पास मुतासर हैं, ये वही बता सकती हैं कि उनके जहन में क्या चल रहा है, ठीक है। और मेरे ख्याल से कि हमें उस वक्त का इंतज़ार करना चाहिए व्हेन शी इज़ रेडी टू कम आउट ऑफ द शेल एंड टेल कि व्हाई इज शी नॉट कंफर्टेबल टॉकिंग टू एनीवन एल्स। आई थिंक थोड़ा टाइम देना चाहिए, एंड देन शी विल बी एबल टू एक्सप्लेन। बहुत से पुलिस के अफसरान इसमें मुअत्तल हुए, आला अफसरान इसमें मुअत्तल हुए, यकीनन जो आपके नॉलेज में होगा, बिल्कुल चल रही हैं मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर। क्या मुअत्तल होने से, किसी को सर्विस से हटाने से, सस्पेंड करने से मामला ठीक हो जाता है? तहमीना, मैं तो यही बात करी जा रही हूँ और मैं यही बात करी जाऊंगी कि जब तक आप किसी को इबरत का निशाना नहीं बनाएंगे, पहले भी बहुत सारी सस्पेंशंस हुई हैं, बहुत सारे ट्रांसफर्स हुए हैं, तो क्राइम रुक गया? आप मुझे बताएं, नहीं रुका है ना। इंक्वायरीज हुई हैं, एक से एक दिल दहलाने वाला वाकया हर दूसरे तीसरे दिन हमारे सामने आ जाता है। मैं तो कहूँगी कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, ठीक है। सीधा जब आप मुल्जिम सस्पेक्ट्स को, आप एक्यूज लोगों को, सस्पेक्ट कहना इन्हें ठीक नहीं होगा, पकड़ लेते हैं तो उनको सजा सुनाएं, उनको पनिश करें। हमेशा कोई अनहोना वाकया हो जाता है तो हम में से ज़्यादातर जो तबका है वो ये कहता है कि स्ट्रीट का कसूर था, माशरा ख़राब था, पुलिस ने सही तरह से काम नहीं किया, विद इन फ्यू मिनट्स रिस्पॉन्स नहीं दिया, इसलिए ऐसा मामला पेश आ गया, या ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई। बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, हमें अपने तौर पर हमें जिम्मेदारियां भी निभानी है। हम अपनी जिम्मेदारियां, अपने हकूक़ व फ़राइज़ को निभाने के लिए क्यों तैयार नहीं हैं? देखिए अगेन यहाँ पर मैं कहूँगी कि हमारी ना मुआशी ग्रूमिंग की जाती है, ठीक है। हमें किसी भी चीज़ के लिए तैयार नहीं किया जाता, ना हमारी सोशल ग्रूमिंग की जाती है, ना हमारी रिलीजियस ग्रूमिंग की जाती है, ना ही हमारी प्रोफेशनल ग्रूमिंग की जाती है। फिर जब लाइफ में हमें डिफरेंट ऐसी सिचुएशंस का सामना करना पड़ जाता है जो कि थोड़ी हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं, तो हम उस इम्तिहान में बहुत बुरी तरह फेल हो जाते हैं। ये तो टोटली एक वो तो एजुकेशन ना, हमारे यहाँ पे कहा जाता है किताबें पढ़ने को, मैं एजुकेशन कहती हूँ सिविलाइजेशन को। हमारे माशरे को ऑल इन ऑल टोटली सिविलाइज होने की ज़रूरत है,
ہے, اور یہ ابھی سے اگر پراپر اقدامات اسٹیپ بائی اسٹیپ کیے جائیں گے نا تو تہمینہ 100 سال لگیں گے ہمیں اس لیول آف سویلائزیشن پر پہنچنے کے لیے جس کے لیے ہم ڈفرینٹ ایڈورس سچویشنس کے لیے تیار ہوں, یا پھر ڈفرینٹ ایڈورس سچویشنز کو ہم اپنے حصے میں نہ لے آئیں. تھینک یو سو مچ. یو ویلکم. اس کے ساتھ ہی ناظرین جو رائے تھی وہ آپ کے سامنے ہے سحر چاولہ کی بھی, اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے تجزیہ کار جو ہیں انہوں نے اپنی اپنی رائے دی ہے, اپنی اپنی نالج اور اپنی اپنی سینس اور اپنی اپنی مینٹالٹی کے مطابق. اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان تہمینہ شیخ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.